Welcome back to the Desi Hustle. I'm Tamanna, and if you've been with us since our first season, you know this podcast has always been about the raw, unfiltered conversations that happen when we stop pretending everything is perfect. Last season, there was something we kept dancing around, something that lives in the spaces between our achievements, in the quiet moments when the hustle stops. This season, we are going deeper. We're talking about the experiences that shape us, but that we are taught never to discuss. We are exploring grief, loss, anxiety, and mental health, topics that remain stubbornly taboo in many of our homes and communities. Before we begin, I want to acknowledge something. If you're listening to this and you're carrying grief, loss, or struggling with your mental health, you're not alone. And despite what you may have been told, your pain doesn't make you weak, it makes you human. So, let's have the conversation we've all been waiting to have. Let's break the silence, one story at a time. Today, let's meet Shilpa, a woman who turned her deepest pain into her greatest strength. 4 years ago, she lost her best friend, her daily companion, her mother. What started as 10 calls a day became WhatsApp messages to silence, and a journey through denial that would eventually lead to her healing. Today, Shilpa sits with us not just as someone who survived loss, but as someone who found her way back to life. Her story isn't just about grief, it's about the messy, complicated, and beautiful process of learning to live again when the person who knew every detail of your life is no longer here to hear them. Get ready for one of our most raw and honest conversations yet. Welcome, Shilpa. You know, like we have become friends as an internet friends. We have never met. Okay, you are in Mumbai, I'm here, so we have never met. I remember, like, when my first child was born, and you started your social media thing. I started following you through one of the mom influencer only. So जो that is मुझे बिल्कुल how नहीं पता we थी started connecting. So it's very like funny story, but that's how I think that's how people meet and that's how we connect. ठीक है, यूनिवर्स इस तरह से लोगों से मिलवाता है I आपको आपकी know. लाइफ में, जो आगे जाके शायद आपको they'll be a part of your life in a very good way. True. You will always get that रास्ता, आपको वो रास्ता दिखाया जाएगा जब आप मुश्किल में, किसी भी मुश्किल में, not only grieving but any मुसीबत, because I am a very spiritual person, religious person, जैसे आज के Gen Z, my brother and sister, no, we are not religious, we are spiritual. I am both. In fact, we connected on so many different levels. And then after I lost my mom, वो एक लंबा सा gap आ गया. But we were still in touch. And then you came and told me that, अच्छा, my mom is hospitalized. So we've seen that different phases. जो Exactly. लोग बोलते हैं ना कि when you are school friends या college friends, you see each other in different phases. I think हमने तो वो 6 महीने में different phases देख लिए. Exactly. I mean, not 6 months, maybe 8, 9 months, because if you were still pregnant जब हमने reconnect किया, that means वो January रहा होगा, because I gave birth January and February, and from there to you losing your mom in September, so वो 8 months का duration. I think we saw इतने सारे phases, वो एक one having a single child वाला phase, फिर second baby was born, Exactly. and then two babies वाला phase, lockdown वाला phase, delivering during that lockdown, and मतलब इतने सारे complications. वो अब भाई you've adjusted कि दो बच्चे हैं, how do I go through this, इतना होते होते our mothers getting hospitalized, and we never thought, actually कोई ऐसे सोचता भी नहीं है कि I will lose my parent, but वो हुआ, like it happened to us. And then not knowing how to parent our second kids and first kids, and be a parent to ourselves also, क्योंकि हम तो मतलब then you are like a motherless child or a motherless daughter, but you're trying to raise your own kids. So वो एक बहुत वो अलग अलग phase था कि how do you deal with that. So I think that is one of the things कि हम relate कर पाते कि अच्छा हाँ, this is how it happens, or like when, and we've grieved in a very different way, like you and me. हम लोग, I know, even on social media you can see how differently you and I grieve. I post nothing, like कुछ नहीं. I mean, to the extent I remember, मतलब after I lost my mother, immediately, like after 15 days, उनका birthday था.
So when I posted happy birthday and I didn't write miss you and all that, people wished me back saying अच्छा happy birthday to auntie. This happened for 3 years क्योंकि मैंने कहीं mention ही नहीं किया. Correct. Whereas Yeah. you were very open about your grief and you said कि अच्छा मतलब मम्मी चली गई, now I don't have a mother anymore, yeah, whatever it was, so we grieved also very differently, but deep down हमारा grief was so similar. Exactly. So let's come back to what we were talking about. हम इस पे भी आएंगे. Tell me वो जो phase हमने अभी जो बात किया, that pre losing our mothers, वो scenario, what it looked for you and how did it suddenly change through the hospitalization and losing your mother? So what happened is, like, firstborn, my mother was there, like taking care of my daughter. हमारे में चलिया होता है 40 दिन, like Correct. we take rest. So my mother was there for during both the deliveries. She was there. So firstborn, she was there after that also. So it was very relaxed. ठीक है, that she's there to guide me कि क्या करना है, क्या खाना है, उसको क्या खिलाना है, उसके साथ क्या करना है. मतलब I know that I don't have to take anything tension वगैरह. मम्मा है, वो देख लेंगी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है. तो शी वॉज द वन हु स्टेड विद मी ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, तो शी वॉज एवरीथिंग फॉर मी. बट जब सेकेंड डिलीवरी हुआ, बिकॉज दैट वॉज 2021, कोरोना ऑलरेडी चल रहा था, सब कुछ था, वो फियर भी था कि छोटा बच्चा है, मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में एज अ न्यू मदर चल रही थी. फिर ऑलरेडी एक पहले बेबी है. जब फर्स्ट बॉर्न होता है ना, तो आपको सिर्फ उसी का ध्यान रखना है. जब सेकंड बॉर्न होता है ना, आपको फर्स्ट बॉर्न का भी ध्यान रखना है, सेकंड का. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फर्स्ट बॉर्न में ना, आई हैव नॉट फेस पोस्टपार्टम थिंग. Nothing happened. It was all very happy because I had a big family and everybody was taking care. कभी मैं मम्मा के घर थी, कभी यहाँ थी, ऐसा ऐसा. बट सेकेंड बॉर्न के टाइम पे एक तो कोरोना था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, और मेरे को किसी की हेल्प नहीं मिल पा रही थी. मम्मा चलिया करा के मेरा शी वेंट बैक. टिल दैट टाइम शी वाज ऑल ओके. तो एक ना वो पोस्टपार्टम कहीं पे मुझे डीपली ना हिट करा, बट वो मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ बिकॉज आई वाज सो बिजी मैनेजिंग एवरीथिंग. तो आपको पता नहीं लगता है कि आपको कुछ चीज बॉदर करे जा रही है, बट आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, एंड यू आर डूइंग योर डेली thing, like taking care of your kids and getting up every day, doing your chores and everything. तो बहुत सारी चीजें हुई. एंड देन सडनली वन डे माय सिबलिंग्स कॉल्ड कि ऐसे ऐसे मम्मा की तबीयत खराब हो गई है, क्या करना है, बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट चाइल्ड, एल्डेस्ट सिबलिंग. तो बहुत सारी चीजें मम्मा के उस फोन कॉल से ही चेंज हो गई, बिकॉज वहीं से स्टार्ट हो गया कि अभी मेरे पास खुद का छोटा बेबी है. आई हैव माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब मम्मा भी बीमार हैं, who will take care of them? Not that कि मेरे siblings उनकी take care नहीं करते, but is that as a elder daughter, I've always been by her side and she's there for me. तो मुझे कहीं ना कहीं वो लगा कि अब मैं इसको छोटे से बच्चे को, my mother passed away in September, so I delivered my second baby in February. So he was only 5 months old. And I was in that phase कि I'm not doing anything for my mother. तो वो postpartum भी चल रहा है, and then this thing also. तो वो चीजें ना मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगी कि I'm not doing anything for my mother. तो वो बॉदरेशन मुझे बहुत ज्यादा, मतलब बिफोर पासिंग माय मदर, तो बहुत चीजें मुझे बॉदर करने लगी कि I have failed myself as a daughter. I am not doing anything. I am just taking care of my kids. So I thought sometime ki, I'll leave my bachas with my husband and family, and then I'll go. I take care of my mother. But then everybody used to say, नहीं नहीं, हम हैं ना, हम देख लेंगे. एंड ऑफ कोर्स आपको भी लगता है कि ठीक है, मुझे इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है, ठीक है, मम्मा ठीक हो जाएगी. यू नेवर थिंक अबाउट कि कुछ हो जाएगा. ठीक है. तो माय हस्बैंड बीइंग वेरी सपोर्टिव, ही यूज्ड टू बी देयर. लाइक ड्यूटी लगती थी हॉस्पिटल्स में, माय ब्रदर and my brother, my sister, my husband, and my Rakhi brother. So 4 of them used to give duties in the hospital. So and mama used to call me video call pe. That's how this entire, I think she was there for like 1.5 months in hospital. So that's how I like survived. But the day I got a call from the hospital that something happened to her, that was the day when hit me very hard ki this is my fault, that I wasn't there for her. She
जो भी मतलब आपको लगता है ना कि आप उनको सेव कर सकते थे, आप नहीं गए इसलिए शी लेफ्ट, Correct. मे बी Correct. you were the favorite child of your mother, but at Were you last the favorite child? I am. I self-proclaimed wala, I am the But favorite. अगर Love, I was her friend, best friend, and we used to I used to call her every day. ठीक है? Like every day, 10 times. After even she passed away, I used to message on her WhatsApp because I was in a denial that she left. I know. I used to message her, and my brother was having that phone, so he used to ignore, as in he used to read but never responded. But it kept on going for a very long time because I was in denial. I wanted to speak to her because that was our daily routine. I used to Correct. she used to call me. I used to tell her everything, but then suddenly one day she's not there. She's so after so many days, my brother finally had this courage. He messaged me, "Mama is no more, stop messaging, just come back to the reality. She's not there. If you want to keep on messaging, it's your wish, but then Mama is not there. She's listening to you. आपको message भेजने की जरूरत नहीं है. She's there." Correct. So that was one point जो मुझे लगा, मतलब I was in denial for a very long time. Like when I got a news about my mother, I went to hospital. It took me 1.5 hour to reach that place, that hospital. So that travel was the longest, journey I of know. my life till date. क्योंकि उस समय I was very numb. अब मुझे being a elder daughter, मुझे बहुत सारी चीजें भी देखनी थी. I need to call people, I need to inform people that something happened. मैं खुद denial में हूँ because अभी तक मैंने अपनी मदर से मिला नहीं है, मैंने देखा नहीं है, but this is something which is being told to me कि ऐसा हो गया है. तो So you got the news that she passed away. yeah, Okay. so my sister was about to reach the hospital. Within a half an hour, she got a call from the hospital that where are you? That your mother is not responding. So when my sister reached early in the morning, they were reviving my mother because she was not responding. Okay. She got detected with autoimmune disease, and then all her organs started failing. She last time she was on dialysis also. Then doctor said now she's recovering. So many things were happening, and we were so confused that what is happening. Even I remember 4 or 5 days prior to the thing happened, then doctor asked us ki now she's recovering, you can take her back home. But my brother said no, let her be here because she will get more attention and Correct. अच्छा सा treatment यहाँ पे instead of taking her back home. And then after 4 days we got a call like that, and my sister was there when they were reviving my mother, and she witnessed that. And till date she says that maybe mama थोड़े time पहले भी चली जाती, but maybe she wanted someone from the family to be there. Correct. She didn't wanted to leave without the closure, that हमको ये एक वो रह जाता ना कि कोई भी नहीं था मम्मा के साथ में उनके Correct. लास्ट टाइम में, Correct. किसी ने भी नहीं देखा, और इन्होंने सही से किया भी कि नहीं किया, या वट एवर. देर आर सो मेनी Correct. हम No, लोग correct. क्वेश्चंस के Correct. साथ में रह जाते हैं. Correct. So my sister was there, she have seen that, and that is the part of her grieving, that कि उसको अभी तक ये लगता है कि मम्मा जब जाने वाली थी, she waited for us, she wanted us to be there, कि मेरे Correct. बच्चे आ जाएं तब मैं जाऊंगी. ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब आपकी सोल रुकी रहती है Correct. जब तक आप Correct. जिससे प्यार नहीं करते, मतलब जिससे प्यार करते हैं उनमें से कोई ना कोई वहां पे रहता है. तो आई बिलीव कि मम्मा एक्चुअली हम में से किसी का वेट कर रही थी कि Correct. कोई आए मेरे बच्चों में से, क्योंकि उनको पता है कि हमारा ये टाइमिंग है, मतलब इतने बजे ये आएगा, इतने बजे ये आएगा. Correct. तो ऐसा ऐसा हमने टाइम सेट करा था बिकॉज 1.5 months शी वाज देयर. एंड पता नहीं, शी वाज उन्होंने भी ना अपनी होप ना मतलब लूज कर दी थी बहुत ज्यादा. Correct. बिकॉज जब आप हॉस्पिटल में हो तो आपको यहाँ सिरिंज हर जगह. आई Correct. हैव सीन माय मदर, मतलब मम्मा का ये था कि मतलब कोई तो आ जाए उस समय तक. तो जब मैं मम्मा के साथ वीडियो कॉल करती थी ना, तब मन्ना आई हैव सीन माय मदर चेंजिंग. लाइक शी यूज्ड टू बी वेरी स्लिम women all through her life. I have seen her very slim, but वो जो antibiotics and medicines and syringe जब जा रहे थे ना, Correct. and she was organs fail हो रहे थे,
उनकी बॉडी ऐसे स्वेल हो गई थी। आप मतलब आप खुद से एज अ लाइक किड्स नहीं देख पाते हो अपने पेरेंट्स को, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स आपको बोलते नहीं, बिकॉज दे नो कि यू विल नॉट बी एबल टू टेक दैट, बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे आर थिंकिंग अपने। एंड नाउ आई कैन रिलेट विद माई मदर, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ग्रीविंग, जैसे कि अभी आपने मेंशन किया, वी वर नॉट एबल टू ग्रीव प्रॉपरली ऑल्सो। वी वर नॉट एबल टू क्राई दैट मच कि हम लोग एकदम जैसे रोना चाहते थे वैसे नहीं रो पाए, बिकॉज आवर किड्स वर वॉचिंग अस। करेक्ट। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। मतलब व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, उससे पहले से ही पोस्टपार्टम एंड एवरीथिंग, मतलब द जर्नी स्टार्टेड। एंड लाइक लूजिंग हर वाज द हिटिंग पॉइंट कि अब तो आई हैव नथिंग टू लाइक लिव फॉर इन दिस। आई नो। हाँ, मतलब इट्स तो लाइक अब ये हो गया, इससे बुरा तो अब कुछ और हो ही नहीं सकता है लाइफ में। Exactly. And this was the word, ठीक है। I actually mentioned somebody like my friend only कि अब तो क्या ही होगा, इतना सब कुछ तो हो ही गया है मेरी लाइफ में। And she very, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, लोग बिलीव करते हैं कि मतलब ऐसा यूनिवर्स को आपको नहीं भेजना चाहिए कि अब तो इससे बुरा क्या ही होगा। And after that, that so much that actually happened in my life, that my mother was not the only one we lost during that time. Like I lost my before my mother passed away, my husband lost his father. So much was going on. Like एक होता है आप grieve कर रहे हो, then you are trying to overcome that grief. You're trying कि थोड़ा सा you will come back to your senses, but one or the other something is hitting. तो आप वो grief के बीच में grief मतलब you are actually not able to come out. So that was, I am telling you, that was the like टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का कि क्या हो रहा है। तो तो वो जो मैंने बोला था ना उस टाइम पे अपनी मदर के टाइम पे कि इससे बुरा तो क्या ही होगा, एंड समबडी देयर एंड देयर मेरे को ऐसा बोला था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एंड देन स्टार्टेड हैपनिंग दोस थिंग। तो मुझे लगा कि हाँ, सच में मतलब नहीं बोलना चाहिए कुछ भी ऐसा चीज हो। सो let's talk about something that we both have experienced. जब when we lost our mothers, तो लॉकडाउन चल रहा था। इट्स नॉट हाउ यूजुअल ग्रीविंग हैपेंस जो इंडियन फैमिलीज में होता है कि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी वॉट एवर तामझाम हैपेंस। वो ऑब्वियसली नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बट द कल्चरल प्रेशर या फिर सोसाइटल प्रेशर इज ऑलवेज देयर। सो डिड यू एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट बिकॉज वो फेज अलग था, द ग्रीविंग फेज, द फ्यूनरल फेज, वाज इट डिफरेंट? कुछ ऐसा हुआ जो नहीं, यू डिड नॉट थिंक ऐसा भी हो सकता है? यूनिक चैलेंजेस? बहुत सारी चीजें एक्चुअली तमन्ना। मतलब दिस I have seen people passing away in the family, but this was something personal, as in मेरी immediate family में my mother passed away. तो पहली चीज तो वो थी कि that I need to call everybody, and then when you're calling, आप उस state of mind में नहीं हो, but then you need to inform people. Then there are पता नहीं, maybe insensitive or is the correct word, or maybe people are not aware कि उनको क्या बोलना चाहिए उस time पे क्या नहीं। If I'm calling you and informing you that my mother is no more and you need to come, there were a few people, they started asking me, and I was not in a condition to answer कि क्या हुआ क्या नहीं है। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मम्मा को ऐसे हो गया है, आप आ जाओ। आप क्वेश्चंस यहाँ पे आके भी पूछ सकते हो, किसी और से भी पूछ सकते हो। आई एम नॉट दैट पर्सन उस टाइम पे, मुझे ऐसे लगा एक। एंड देयर वर सो मेनी रिचुअल्स व्हिच आई फेल्ट कि क्यों है, क्यों है, मतलब नहीं हूं। तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आती थी कि क्या मम्मा ऐसा चाहती थी, क्या मम्मा को ऐसा करना था, क्या मम्मा अगर होती तो वो ऐसा करने देती। तो वो चीजें मेरे दिमाग में चलती थी। तो मुझे लगता था कि ऑल्दो आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मदर, बट एज अ इंडियन सोसाइटी वी आर लिविंग इन, वी नेवर टॉक अबाउट व्हेन वी आर लिविंग, लाइक व्हेन वी आर अलाइव, we talk about properties, we talk about finances, we talk about बच्चों की security, but we never talk about death. करेक्ट। Right? We never talk about death. It is a kind of ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। करेक्ट। एंड वो चीज ना मुझे उस समय हिट करी, क्योंकि जब पंडित जी हमें बोलते थे ना मम्मा को क्या पसंद था वो चाहिए, मम्मा को क्या करना, तो मुझे लगता था कि
ऐसे जनरली तो मुझे पता है कि मम्मा को क्या पसंद था, फूड एंड फ्रूट एंड एवरीथिंग, बट उस टाइम मुझे वो करना चाहिए, मम्मा को ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि होता है ना, पंडित जी बोलते हैं काफी सारी चीजें कि आप ये करोगे तो ये होएगा, ये करोगे तो वो होएगा। तो मुझे लगता था कि होएगा ना, पक्का होएगा ना, पक्का Believe होएगा we ना। are एंड talking about grief and laughing on this thing. बट सी, It's a fact. It's a fact. नाउ वी आर लाफिंग एट इट, बट दैट टाइम जो पंडित जी या जो रिलेटिव्स आपको बोलते जाते हैं ना, आप वो करते जाते हो, ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि ये एक्चुअली में ऐसा होना भी चाहिए कि नहीं। बिकॉज उस टाइम पे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि आर फ्रेंड्स वर मोर अवेलेबल फॉर अस देन द पीपल वी थॉट विल बी देयर फॉर अस। So our friends were there as a like pillar of strength. They were there as in physically also, calling also. I'm not saying, I'm not blaming anyone, but maybe हो सकता है कि उनको लगा हो कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो शायद वो नहीं आए। एंड हमारे फ्रेंड्स को लगा हो कि हमको उनकी जरूरत है, इसलिए वो आए, क्योंकि हर कोई अपने Correct. हिसाब से सोचता है। तो when you're grieving, you need people, Correct. you need people to listen to you, you need people कि आपकी बात सुने, आपकी जो कहानी है या आपका जो दुख है, कुछ भी है, वो सुने। तो वन डे वी वर सिटिंग ऐसे ही, मतलब मी, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय कजिन्स वर सिटिंग, एंड देन ना, बिकॉज नाउ आई मेंशन कि हम लोगों में डेथ नहीं डिस्कस करते हैं, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग बिकॉज आई वांट माय फैमिली टू नो दैट आप ये सब कर लो जो आपको करना है, जो आपकी मन की शांति हो। बट मैं जब जाऊंगी, मेरी मन की शांति तभी आएगी जब आप मेरे नाम से, बिकॉज आई एम अ डॉग लवर, ठीक है, आप मेरे नाम से मेरे जो डॉग्स हैं उनको आप खाना खिला दो, दूध पिला दो, आई बी मोर देन हैप्पी, Correct. Correct. हेयर ऑल्सो एंड देयर ऑल्सो, ठीक है। Correct. ऊपर जाके भी मेरे को उसी चीज से खुशी मिलेगी। अगर आपको पंडित जी बोल रहे हैं कि मेरे नाम से गाय के लिए पैसे निकालने हैं, तो उनको मत देना, आप जाके खिला कर आना कि मुझे पता होना चाहिए कि वो गाय को खाना खिलाया जा रहा है मेरे नाम से जो निकला है। तो वो चीजें है। सी, In fact, now looking back, उस time like I was so numb. वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अचानक हो गया. And my only good take out from that entire thing was कि कोई नहीं था. There were no relatives. So उसमें क्या हुआ, जो एक ये जो बोलते हैं ना, ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो बोलने वाला कोई नहीं था. There was ओ, nobody, ओ, which is a good thing. हाँ, मतलब, and now when I look back, did you also hear comments like अब तो तुम्हें strong रहना पड़ेगा, बच्चों के लिए खुश रहना पड़ेगा. so many times that I told you that कि with postpartum depression and this thing happening in my life, कहीं ना इसने मेरे फिजिकल उस पे टोल लिया, that from 78 kgs I don't know how my weight have come to 58 kgs. So losing 20 kgs in maybe 6-7 months was too much. So people used to see me and used to say this thing that अब इट्स ओके, इट्स बीन लॉन्ग, कब तक तू मतलब सोचती रहेगी उस बारे में, लुक एट यू, व्हाट तूने अपनी क्या हालत कर रखी है, तुझे ही अपने बच्चों को देखना है। फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू मे बी इट्स ठीक है, मतलब उनके हिसाब से ठीक होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप एक अच्छी खासी हेल्दी लड़की को देख रहे थे, 78 केजीज कोई कम नहीं होता है, एंड सडनली आप एकदम से एक लड़की को देख रहे हो जो 78 से 58 हो गई है, तो उनके हिसाब से। बट उस टाइम ना मैं रेडी नहीं थी इन चीजों को सुनने के लिए कि आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, ठीक है, आई लॉस्ट माई मदर। तो मुझे ऐसा लगता था कि उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड दैट आई लॉस्ट माई मदर। तो मुझे गुस्सा भी आता था, कई बार लोग ऐसे बोलते थे ना, अब तो अपने बच्चों को देख, जो चला गया वो चला गया, शी इज एट बेटर प्लेस, शी वॉज इन हॉस्पिटल फॉर सो लॉन्ग, जो भी है अब यही है, आगे चलना है, अपने भाई बहनों को देख, अब वो तुझे ही देखते हैं क्योंकि यू आर द मदर फिगर, अब तुझे ही करना है। ऑल दीज कमेंट्स आई यूज्ड टू गेट। तो उस समय ना मुझे बहुत बुरा लगता था कि व्हाई दीज पीपल आर सेइंग दीज थिंग्स। मेरी मम्मा थी, ऐसे कोई ऐसे ही कोई नहीं था, मम्मा थी मेरी। बट फिर लेटर अब मुझे लगता है कि ठीक है, लोगों को ना शायद समझ में नहीं आता है उस टाइम क्या बोलना है। दैट इज नॉट देयर फॉल्ट ऑल्सो, क्योंकि आपको क्या लगता है ना, एज अ ग्रीविंग पर्सन वी वांट पीपल टू सिट विद अस साइलेंटली,
ताकि अगर मैं रोना चाहूँ तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, मैं रोना चाहूँ तो मैं रो सकती हूँ, थिंकिंग दैट कि आप मुझे जज नहीं करोगे। करेक्ट। बट when I'm grieving and you are giving me that ज्ञान ना, which I तसल्ली। don't want that particular time, कि मुझे नहीं चाहिए आपका ज्ञान यार, आपका ज्ञान का मुझे ऐसा थोड़ी ना कि जो आप बोल रहे हो मुझे पता नहीं है कि हाँ शी इज एट बेटर प्लेस, या फिर आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर माई किड्स। आई नो, ठीक है, बीइंग अ मदर आई नो कि मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है अपने बच्चों के लिए, एंड शी इज एट अ बेटर प्लेस। बट आप उस समय क्यों बोल रहे हो जब मुझे रोना आ रहा है? आई एम आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड कि मैं आपका ज्ञान ले पाऊं। तो मुझे लगता है जब when somebody is grieving in that state of mind, आप सिर्फ उसके साथ बैठो साइलेंटली, कुछ मत बोलो। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते या कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे उसको कंफर्ट मिले, यू जस्ट सिट साइलेंटली, एंड दैट्स व्हाट आई डू लाइक नाउ ऑल्सो। नॉट दैट कि आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल हु आर grieving, but I see people, you know they are not doing good mentally, so just give them a hug. Like, I remember when you have started that grief group, I joined there, and you have started interacting with all of the, like, members. I used to that because that was the initial stage, and so I used to tell you the stories, and the other people used to be there to listen to them, and then they used to share their stories. So that was a very good thing you have done at that point of time, कि वो एक ग्रुप ना, एक ऐसा ग्रुप था जहाँ पे आपको पता था कि सारे लोग आपको समझ रहे हैं, करेक्ट। कि आप जो बोल रहे हो ना वो समझ पा रहे हैं, ये उन लोगों में से नहीं है जो आपको मूव ऑन करने के लिए बोल रहे हैं। दे करेक्ट। आर आस्किंग यू टू मूव फॉरवर्ड, नॉट मूव ऑन फ्रॉम द ऑन। सिचुएशन। यस। Move forward as in keep your mother in your heart, and move forward, for your kids, or move forward in your life. So yeah, that group helped me a lot. मैंने तो इतनी सारी चीजें उसमें लिख लिख के भेजी थी, because मुझे उस समय पे मुझे I love taking out my emotions, like talking, writing. So that was one of the blessings during that time, that group which you started, कि हम लोगों ने उसमें लिखना शुरू करा, and I have seen lot of more people. तो जब और लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं ना तमन्ना, तब आपको ना एक लगता है कि हाँ, मतलब आप अकेले नहीं हो जो इस फीलिंग से करेक्ट। गुजर रहे हो, क्योंकि लोग ना कभी करेक्ट। कभी ऐसा फील करा देते हैं अनइंटेंशनली कि आप आपको बहुत ज्यादा ही सोच रहे हो। कभी कभी ऐसे लगता है, जैसे अभी तक इट्स गोइंग टू बी 4 years नाउ इन सितंबर, but I still talk about my mother. I still post stories where I say I miss you. करेक्ट। People say that she, like, मुझे ऐसा लगता है कि people लोग सोचते होंगे ये क्यों इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है, बिकॉज मुझे लगता है that I'm taking out what is in my mind. my Instagram is my personal space, my happy space, जहाँ पे करेक्ट। मुझे लगता है कि nobody is there to judge me. It, लोग जज करते होंगे तो करते होंगे, अपने घर पे करते होंगे, बट मेरे को कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। वहां पे एटलीस्ट आई हैव दिस अथॉरिटी दैट आई कैन डिलीट कमेंट, आई कैन रीड अनरीड द कमेंट्स, so that is my happy space. करेक्ट। whenever I am like in a mood कि हाँ, तो आप देखोगे मेरा इंस्टाग्राम ना ऐसा है कि अभी 10 दिन में पोस्ट करूंगी बिकॉज आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, एंड करेक्ट। देन 10 दिन में गायब हो जाऊंगी बिकॉज आई डोंट फील लाइक, क्योंकि अभी भी ना इट्स बीन 4 years, आई स्टिल गेट दोज बम्प्स। करेक्ट। I lost my dog recently. I posted a story on Instagram that there is one pigeon who visit us every day, because I started believing that when my dog was there, that pigeon used to come, but he used to shoo him, the pigeon, away. But now that pigeon comes every day, so I believe that he's the messenger, or maybe Oreo is there. So this is my way of coping my grief, thinking that ki ha, my loved ones are still here, they are there for me, maybe not in a physical form, but yes, soul wise they are there, दे आर गाइडिंग मी, दे आर वॉचिंग ओवर मी। सो हाँ, मुझे लगता है कि ठीक है, जिससे मुझे खुशी मिलती है ना, वो चीज अब मैं करने लगी हूँ। पहले मैंने बहुत लोगों का सुन लिया कि नहीं ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बट मेरा एक स्टेट आ गया था जब मुझे अटैक्स आने लग गए थे, एंड आई रिमेम्बर यू वर द फर्स्ट पर्सन आई कॉल्ड एंड आई सेड, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हो क्या रहा है, एंड आई करेक्ट। कॉल्ड यू एंड आई आस्क्ड यू कि तमन्ना मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, आई कि मैं खड़ी हुई हूँ और मेरी एकदम से ब्रीदिंग ऐसे रुक रही है। आई रिमेम्बर यू told me कि this is something you were also going through that time, and
The anxiety Yeah. attacks. So I have consulted the doctor. So that was the very difficult time. मुझे पता ही नहीं था मुझे अटैक्स आ रहे हैं. मतलब मैं खड़ी हूँ एंड एकदम से मम्मा का कुछ थॉट आया और मेरा फर्स्ट गिल्ट यही आ जाता था कि मैं अपनी माँ को सेव कर सकती थी, बट कहीं ना कहीं मैंने आई हैव chosen to be a mother instead of being with my mother in hospital. But that was not the case. As I mentioned कि मेरे भाई बहन, मेरा हस्बैंड वहां पे थे. ऐसा नहीं कि मैं वहां पे जाती कुछ डिफरेंट मैं कर देती, मैं भी वही करती. आई शुड हैव Correct. बीन प्रेजेंट. बट ये मेरा हमेशा का गिल्ट रहा और काफी टाइम तक रहा. अब जाके अपने आप को मैंने खुद से समझाया है. और ऐसा भी नहीं कि मतलब बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने समझा दिया. और उस समय पे ये बहुत डिफिकल्ट था. स्टार्टिंग स्टेज पे मुझे एंजाइटी अटैक्स पड़ते थे. आई हैव सीन एंड ऐसा नॉर्मल नहीं. आई यूज टू क्राई, आई यूज टू शाउट बहुत ज्यादा. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी तो था ही, बट मेरे बच्चों के लिए द यंगर वन वॉज वेरी यंग. Very young. Elder one, she was 4. Correct. And I don't know, but I still regret this thing that I was going through this grief and anxiety, and I used to do this. जब मुझे अटैक्स आते थे, जब मेरा ब्रीदिंग एकदम से रुक जाता था, and my husband used to be with me all the time. But my daughter, the young daughter, she was just 4 years old. She used to watch me like in that condition. She have seen me in that condition, and somewhere in my grief, I have changed her also, because Correct. she have seen me in that state of mind or state of थिंग कि मम्मा को ये क्या हो रहा है. एंड 4 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपको आके कंसोल करेगा, बट शी वाज देयर. शी यूज्ड टू टेल मी, मम्मा इट्स ओके, नानी इज देयर, नानी इज वाचिंग यू. तो मुझे एक टाइम पे ना, उस टाइम पे बिकॉज मैं अपने ही उसमें थी कि नहीं नहीं ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, ये क्या हो गया. बट स्लोली स्लोली मैंने खुद ने देखना शुरू करा कि मैं माई मदर इज नो मोर, बट आई हैव टू लिव फॉर माई किड्स. Correct. एंड नॉट लिव एज इन कि मैं रोज सुबह उठ रही हूँ, खाना बना रही हूँ और चल रही हूँ. नहीं, आई हैव टू गिव देम द हैप्पी मदर विच आई हैड. I can't be a grieving daughter all throughout my life. I have to be a happy mother, and I have changed my life from there. I have started my journey towards spirituality. I have started believing in God. I have started believing that my mother is there, you know, as a soul, and she's guiding me. So that was the turning point when I actually felt कि नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी है. मुझे अपने बच्चों के लिए भी जीना है और अपने लिए भी जीना है. क्योंकि जब मेरी Correct. मम्मा चली गई ना, एक चीज मुझे जो और हिट करी ना, वो ये करी. एंड नॉट ओनली मी, माय सिबलिंग्स आल्सो हैव रियलाइज्ड दैट हमारी मदर ने ना कभी अपने लिए नहीं जिया. शी हैव ऑलवेज लिव्ड फॉर अस. सो ऑल्दो मैं सबको ये बोलती हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी ये बोलती हूँ, ऑल्दो आई लव माई मदर, I still love my mother, but in this scenario, I don't want to be like my mother, like a sacrificing mother. I want to live my life for myself also. ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ बच्चों के लिए जी रही हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी फनी थिंग, बट दिस इज व्हाट आई डू. ठीक है, लाइक माई मदर, she used to cook food for us, and then वो होता ना बच्चों का कि चलो अपना खाना खा रहे हैं, and then she used to ask और चाहिए और रोटी चाहिए. तो नहीं नहीं मम्मा नहीं चाहिए नहीं चाहिए. तो the moment she used to sit with her plate ना, with रोटी एंड सब्जी, तो उसमें से हमें अच्छा मम्मा एक और है क्या, तो ऐसा हम पूछ रहे थे. और हर बच्चा ऐसा करता है. तो माई मदर बीइंग अ सैक्रिफाइसिंग मदर, नहीं नहीं मेरे में से ले लो, है ना, मेरे को तो खाना नहीं है करके हमको दे देती थी. एंड शी यूज्ड टू कंट्रोल, मतलब अपने पोर्शन में से हमको दे देती थी. Correct. आई एम नॉट लाइक दैट मदर तमन्ना. ठीक है, I do that. Like I'm cooking, I ask my kids, do you want more? If they say no, I'll make my food and I'll sit. Once I sit down for my food, if they are saying कि मम्मा और भूख लगी है, I'll ask them कि अब wait करो, let me have my food, then I'll make for you, but let Correct. me have my food. I will not going to share my share of food with you just because I want to sacrifice. No. So I have learned these few छोटी छोटी चीजें मम्मा से ही, कि उन्होंने अपनी लाइफ नहीं जी. बट आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे भी सेम चीज सोचें कि हमारी माँ ने हमारी वजह से लाइफ सेक्रीफाइस कर दी. जैसे अभी आई एम ऑन अ ब्रेक. ठीक है, मतलब आई यूज्ड टू हैव अ रिटेल करियर, एंड देन आई हैव चेंज्ड माय करियर. बट
अभी भी आई एम नॉट पुटिंग माई 100% बिकॉज माई यंगर वन इज जस्ट 4, तो मुझे ऐसा Correct. लगता है कि नहीं, अभी ही नीड मी। बट देन ऐसा नहीं है कि मैं 100% मतलब 100% पूरा दिन उसी को ही संभालने में लगा रही हूँ। आई हैव माई ओन लाइफ, आई हैव Correct. माई सेट ऑफ फ्रेंड्स। तो एंड इन दिस माई हस्बैंड इज माई बिगेस्ट सपोर्टर, यू नो। ही टेल्स मी कि अगर आपको जाना है, आपकी लाइफ मतलब आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना है, कुछ करना है, आई टेक केयर ऑफ माई किड्स। तो एक वो होता है ना, सपोर्ट होता है ना आपके लव्ड वंस का, आपकी फैमिली का। इवन फॉर दैट मैटर माई फ्रेंड्स ऑल्सो, दे टेल मी कि बच्चों को यहाँ पे छोड़ के चले जाया करो एंड गो, बोथ ऑफ यू गो डेट, डेट करने जाया करो, यू स्पेंड टाइम विद यू नो ईच अदर ऑल्सो, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Correct. तो Correct. मुझे लगता है कि हमारी मदर्स ने ना, दे हैव नेवर लिव्ड आफ्टर, है ना, हम लोगों के पैदा होने के बाद दे नेवर लिव देयर लाइफ। तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं हमेशा रिग्रेट रही कि उन्होंने कभी अपनी लाइफ नहीं जी। एंड उससे मैंने एक लर्निंग ले ली कि आई डोंट वांट टू बी दैट मदर कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे भी यही सोच रहे हो कि मम्मा ने Correct. अपनी लाइफ नहीं जी। तो उनको लगना चाहिए कि नहीं, मम्मा अपनी लाइफ जी के गई है। शी हैड हर फ्रेंड्स, शी यूज्ड टू गो फॉर योगा, शी यूज्ड टू गो फॉर जिम, शी Correct. यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, शी यूज्ड टू वर्क आल्सो। एंड समटाइम्स ना आप अपने आप को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हो कि नहीं नहीं, हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरी आदत है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ। बट आप थर्ड पर्सन की नजर से नहीं देख रहे हो अपने आप को कि उनके लिए आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर बहुत रहे हो, कुछ कर रहे हो. बहुत कुछ कर रहे Yes. हो। तो आई थिंक ग्रीव ना थोड़ा थोड़ा ऐसे स्टार्ट होता है दैट एज वी रीड ऑल्सो दैट यू नो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। यू नो, फर्स्ट यू आर इन डिनायल कि ये क्या हो गया हमारी Yeah. लाइफ में। Correct. एंगर होता है, जैसे मुझे था कि क्यों नहीं गई मैं अपनी मम्मा के पास में, यू नो आई शुड हैव बीन देयर विद हर। कुछ नहीं चेंज कर देता उस चीज को, बट वो चीज मुझे रही हमेशा ग्रीफ में कि हाँ। तो ये डिप्रेशन भी आया, ऊपर नीचे स्टेजेस आते हैं, बट अब मैं एक्सेप्टेंस वाले फाइनल स्टेज पे हूँ दैट आई हैव एक्सेप्टेड दैट दिस इज द रियलिटी, शी इज देयर एंड आई हैव टू बी अ गुड डॉटर, गुड सिस्टर एंड better mother for my kids. So I am in that stage of grief where I'm grieving also, but you know people will not get to know so much about my grieving जैसा वो शायद 1 साल पहले 2 साल पहले शायद देखते थे, because I am working on myself and I'm trying कि you know I can live better life with my grief and I can make my mother proud कि हाँ, you know, she's proud that because she always wanted me to be happy and live a good life as a family. So yes, I'm doing that. कि हमारे कल्चर में it's a taboo that you can't talk about death. अगर आप बोल भी दो, अरे यू नो एक दिन ऐसा हो जाएगा, यू नो आफ्टर आई डाई, ये मत करना. आई मीन इट्स अ बिग टैबू. सो इसकी वजह से वंस अ पर्सन लीव्स वी आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट दैट पर्सनस लाइफ कि अरे यू नो इतना कुछ किया, इतना कुछ करती थी, या शी यूज्ड टू कुक वेल, शी यूज्ड टू डांस वेल, जो भी था. So as I know we have started talking about deaths, do you feel you know we should have ऐसे कुछ communities जैसे हमारा support group था? How important is it to talk about death? I personally feel कि बात करना चाहिए, ठीक है, कि पहले भी बात करना चाहिए when you know you're alive and after the person is no more in you know in their physical form, you should speak about them. Like I always make sure to tell my kids about नानी, ठीक है, because the younger one was 5 months old, तो उसको तो याद भी नहीं है कि नानी कैसी दिखती थी. So मेरा तो वॉलपेपर भी मेरी मदर के फोटो का है, तो मेरे दोनों बच्चों को मेरी मदर की शक्ल नहीं भूलनी चाहिए. ये एक मेरा रीजन है टू पुट हर एज अ वॉलपेपर पिक्चर. तो मेरे बच्चों को आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट अगर नानी थी तो ऐसे करती थी, नानी ऐसे करती थी, नानी को ये अच्छा लगता था. इवन एज अ सिबलिंग ऑल्सो हम लोग जब भी मिलते हैं मम्मा की बातें करते हैं. और इवन बिकॉज माई ब्रदर you know was a spoiled wala bacha. I was the favorite, but my brother was a spoiled wala bacha, spoiled in a way that my mother, whether he's coming you know like 3 o'clock or 2:30 or whatever, like 3 o'clock 4 o'clock in the night or morning, she will get up and make a fresh chapatis for him. Because मेरे ब्रदर का ये एक हैबिट था मम्मा के जाने से पहले कि उसको गरम गरम ही खाना खाना है, एंड मम्मा ने उसको ये स्पॉइल कर रखा था कि खाना तो मैं गरम ही दूंगी, ठीक है. मैं और मेरी सिस्टर नहीं करते थे उसके साथ में. और ऐसा गरम मतलब तमन्ना
कि मतलब एक अगर उसके चपाती उसकी प्लेट में गई ना, जब तक वो चपाती खत्म नहीं हो जाएगी ना, वो सेकंड चपाती उसकी प्लेट में नहीं जाएगी। इस तरह से स्पॉइल कर रखा था मेरी मदर ने। तो वाह। फॉर हिम, जब मेरी मम्मा चली गई तो फॉर हिम ये चीज उसके लिए बहुत चेंज हुई, क्योंकि अब कोई नहीं था उसके लिए ऐसा गरम। अगर आपकी कुक भी आ रही तो वो तो बना के आपको हॉट केस में रख के चली जाएगी, और बहनें भी ऐसी नहीं है कि वहां पे खड़ी रहेंगी तेरे लिए इंतजार करने के लिए। तो मम्मा की कुकिंग ना, बिकॉज हर बच्चे को अपनी माँ की हाथ का खाना, है ना। यस। तो दिस वाज द थिंग कि वो स्टार्ट हुआ कि वो उसको लगता था कि मी बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर, मैंने अपनी मम्मा से बहुत टेस्टी खाना बनाना सीखा होगा, जो कि उसका मिथ था, जो उसका मिथ भ्रम उसका टूटा, जो उसने एक्चुअली में मुझसे रिक्वेस्ट करके मम्मा के, जो मम्मा बहुत अच्छा, मतलब जैसे भिंडी, हमारे में सिंधी भिंडी, और मतलब सिंधी रेसिपी के हिसाब से भिंडी और अरबी ऐसा दाल वगैरह सब बनता है ना सिंधी रेसिपीज के हिसाब से। मैंने कभी नहीं सीखा, तो बट मैंने ट्राई किया, जैसे मैंने मम्मा को देखा था एंड यूज्ड टू गिव मी वहीं पे ही रिव्यू, मम्मा के जैसा नहीं बना। मैंने कहा वो बन भी नहीं सकता वो बन भी नहीं सकता, बिकॉज मैंने मम्मा से नहीं सीखा। तो दीज आर द वेरी गुड मेमोरीज, मतलब वी थिंक अबाउट आवर मदर कि मम्मा ऐसे कॉल, ऐसे तुझे स्पॉइल कर रखा था, ये सिर्फ मम्मी की वजह से है कि तू अभी तक यू नो अब। और अब जब भी हम उससे कुछ भी पूछते हैं ना, खाना खा लिया, तो उसका एक ही जवाब आता है कि अब मम्मी नहीं है ना, तो अब मेरा कोई ऐसा मतलब खाने का चॉइस नहीं रहा है, अब जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। तो दैट्स हाउ किड्स चेंज। तो दैट इज हिज वे ऑफ रिमेम्बरिंग हर, कि मुझे मम्मा खाना गरम गरम देती थी। तो अब हमसे पूछते हैं ना, मैं मेरी सिस्टर की, खा लिया खाना, खा लिया, क्या बनाया, क्या बनवाया था आज, तो वो बोलेगा नहीं नहीं अब तो मैं सब खा लेता हूँ, जो मेरी कुक बना के जाती है ना वो सब खा लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप मतलब मम्मा के जाने के बाद भी, और जैसे आई जब मम्मा चली गई थी, तो आई वी हैव स्टार्टेड रीडिंग अबाउट आफ्टर लाइफ एंड वेस्टर्न कल्चर। तो इन वेस्टर्न कल्चर दे एक्चुअली सेलिब्रेट करेक्ट। पीपल, करेक्ट। दे डोंट लाइक, वो हमारी तरह नहीं करते हैं। तो मुझे उस चीज का हम लोगों ने थोड़ा सा वी हैव टेकन इट फ्रॉम देयर कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट माय मदर। तो आई थिंक वी सेलिब्रेट देम, वी नो मोर टॉक अबाउट कि उनकी डेथ कैसे हुई, वी कैसे नो मोर हुई। टॉक अबाउट इट, क्योंकि वो सिर्फ ना हमें दुख देती है चीजें, क्योंकि फिर हम उस गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं। करेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन दैट गिल्ट ट्रिप एंड रिमेम्बरिंग दोज लास्ट डेज जो आपको कुछ खुशी नहीं दे रहे हैं, ना उनके बारे में ना अपने बारे में, इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट रिमेम्बर दोज हैप्पी मोमेंट्स जब वो वहां थे। आई हैव सो मेनी वीडियोज, एंड क्योंकि मुझे ना वीडियोज और फोटोज लेना बहुत पसंद है, एंड करेक्ट। एवरी मोमेंट आई डू दैट, एंड आई यूज टू डू दैट बिफोर ऑल्सो, एंड नाउ तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट मोर ऑफन। तो मेरे पास अपनी मम्मा की बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। तो आई मेक श्योर कि वो मेमोरीज में भी आ जाती है ना, गूगल फोटोज वाली, तो मेमोरीज में आती है। आई मेक श्योर मेरे बच्चे देखें, एंड आई समटाइम्स शेयर इट इन द ग्रुप ऑल्सो, लाइक वी हैव सिबलिंग ग्रुप, तो करेक्ट। उसमें भी आई शेयर इट सो दैट दे आर ऑल्सो रीलिविंग। कई बार क्या होता है ना, आप एक, आपकी डेली लाइफ है, आप कभी कभी नहीं हो उस मोमेंट पे, बट आपकी कोई ऐसी मेमोरीज आ जाती है ना, करेक्ट। तो आपका पूरा दिन एक अच्छा हो जाता है जब आप यू सी अ हैप्पी मेमोरी। तो मुझे लगता है कि विद ग्रीविंग, दैट्स हाउ यू कम आउट ऑफ दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, करेक्ट। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका कहीं खत्म नहीं होगा। वंस यू स्टार्ट ग्रीविंग, वो कहीं ना कहीं एक कोने में मेरे है, और वो कभी ना कभी बाहर निकल आता है। एंड एवरीबडी हैव सीन दैट फेज ऑफ माइंड, लाइक यहाँ मेरे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, they have seen me always as a happy chirpy girl, but जब मैं उस मोड में चली जाती हूँ, they know that something has happened to her, now she's not in that state of mind कि मतलब कुछ तो हुआ है इसको, तो उनको पता है कि इसको क्या हुआ है, क्योंकि एक ही चीज मुझे हिट करती है। तो आई थिंक सेलिब्रेटिंग life, living or after death is very important. So one ritual I wanted to mention, that one ritual, as I mentioned that I love capturing memories and all. One ritual after my mama and my masi passed away, because we realized that we after growing up, we became so busy in our life that we stopped capturing their pictures. करेक्ट। सो मम्मा जब गई तो हमारे पास उनकी कोई ऐसी फोटो नहीं थी निकलवाने के लिए, जो एक हैप्पी फोटो हो, मतलब हमारे साथ में है, ऐसे ही है, किसी सेलिब्रेशन में किसी इवेंट में गई है, बट ऐसे नहीं है कि मतलब हमने उनकी फोटो ली हो। तो वी हैड नो फोटोज ऑफ हर।
every 1st of January or every first week of January, whenever we all are available, we have to have a photo session. आफ्टर So डेथ की we, फोटो बनवा रहे हो? हाँ, मतलब एज अ मेमोरी वी वांट टू कीप, एज अ नॉट करेक्ट, सोलो, मतलब बट एज अ मेमोरी दैट जहां पे भी है, जो भी, जैसे फर्स्ट ईयर we had individual pictures also and as a family picture also, which you can find it on my Instagram as a as a कि हाँ ये हमारा है. So every year just to be united with each other, क्योंकि हर किसी की लाइफ बहुत बिजी है, हर कोई करेक्ट, कुछ ना कुछ कर रहा है. तो दिस इज द ओनली, मतलब एक छोटा सा रीजन शायद हमने रिचुअल के नाम पे स्टार्ट किया एज अ सिबलिंग, कि एक जगह पे एक साल में तो हमें इकट्ठा होना ही होना है विदाउट हैविंग सम काइंड ऑफ फेस्टिवल और ओकेजन. करेक्ट, This is our own happy wala, करेक्ट, ritual which we have started as a sibling, ki this is bonding us all together. करेक्ट. So yeah, अभी तो लाइफ अच्छा, मैंने एकदम से थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया है. आई एम वेरी हैप्पी. टच वुड. आई एम एट माय हैप्पी स्पेस ऑफ माय लाइफ एंड आई एम बिकमिंग अ better person, better mother for my kids. Yeah. When you lost your mother and now Oreo, how has this changed your relationship with outsiders? How did that change your perspective? इट चेंज्ड अ लॉट एक्चुअली. पता है, अब पहले मुझे क्या ना, पहले मुझे बहुत बॉदर करता था कोई, अगर जैसे फ्रेंड्स है एंड दे स्टार्ट सडनली कोई मुझे गोस्ट कर देता था या फिर मुझसे बात करना बंद कर देता था, तो मुझे कहीं ना अंदर, मतलब वो पिंच होने लग जाता था, वो हर्ट होता था. बट अभी क्योंकि मैं अपने आप में ही ना, मुझे लगता है कि मैं आई एम हैप्पी, एज अ person, and I have my siblings, my husband, who were there when I needed more Correct. people, who I thought will be my strength, but Support. they ghosted me during that time for whatever reason. I'm not saying कि उनके reasons नहीं रहे होंगे, they must have had their Correct. own personal reasons. क्योंकि क्या होता है ना, आप जब grieve कर रहे हो, you are in a not in a positive space. Correct. तो कई बार होता है कि आपको you're not giving that positive vibes to the other person, so that person is not feeling very positive with you, so Correct. they sometimes they They stop ghost you. talking. Yeah. So maybe they have their own reason, but उस चीज से ना मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि सिर्फ मेरे भाई बहन ही हैं और मेरा हस्बैंड ही है, मेरे बच्चे ही हैं, सिर्फ ये जो क्लोज वाले लोग हैं ना, सिर्फ इनके कुछ करने या इनके कुछ बोलने से मेरी लाइफ में कुछ फर्क या फिर कुछ चेंजेस होने चाहिए. इफ दे आर गिविंग मी सम फीडबैक, आई शुड वर्क ऑन दैट. If they are not happy with my behavior or not happy with something, तो मुझे वो चेंज करना चाहिए. तो only these limited people are my people now. और किसी के कुछ बोलने करने से अब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता है जब से मम्मा गई है. Correct. क्योंकि इन लोगों ने मुझे उस स्टेट में देखा है ना, उस फ्रेम ऑफ माइंड में देखा है जब ये लोग शायद मुझे छोड़ सकते थे. क्योंकि इन्होंने Correct. मुझे सबसे वर्स्ट स्टेट ऑफ माइंड में देखा है, जब Correct. मतलब मैं बेफालतू में भी चिल्ला सकती हूँ, मैं रो सकती हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, बट दे हैव हेल्ड मी टाइट कि नहीं, हम हैं. ऑल्दो दे वर ऑल्सो ग्रीविंग विद मी, ऑल ऑफ Correct. देम, Yes. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो, नहीं, माई हस्बैंड, माई ब्रदर, सिस्टर, माई कजन्स, ऑल ऑफ देम. एंड I tell this to everybody. I am the eldest. Just for saying that I am the eldest, my younger siblings, they are more stronger than me, Tamanna. They are very strong people. They're very strong individual, and as a whole, like a bunch, they are the strongest people I have in my life. And I have been very vocal about it also. कि लोग कई बार बोलते भी हैं that this is the only family I have. No, I have very big family, but these are the people who actually matter to me the most. ऐसा नहीं है कि बाकी लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं. They are also there in my life and I have उनके लिए भी मेरे दिल में जगह है. But ये लोग, because I'm a Virgo, I know. but ये लोग मेरे हैं, मतलब I can't live without them. They are my lifelines. So अब
मम्मा के जाने के बाद ये चीज चेंज हुई दैट आई नो हु आर माई पीपल. आई डोंट रन बिहाइंड पीपल नाउ. अगर कोई मेरे से बात करना छोड़ देता है ना, मुझे वो बॉदर नहीं होता. पहले मुझे बहुत बॉदर होता था. मे भी हो सकता है कि मैंने क्या गलत कर दिया, हाँ, चेंज दिस. एग्जैक्टली क्या मैंने कुछ बोला था, वो अंदर अंदर सेल्फ गिल्ट लेना, सेल्फ डाउट लेना, वो चीज करेक्ट. बहुत होती थी. फिर मुझे अब नहीं वो चीज होती. पहले ना, और मम्मा के जाने से पहले आई यूज टू बी वेरी कंट्रोलिंग. अब नहीं है. अब आई हैव, बिकॉज आपके कंट्रोल करने से ना सिचुएशन नहीं चेंज हो जाती. ठीक है, सिचुएशंस वही रहती हैं, बट ठीक है, आपको कभी कभी छोड़ देनी चाहिए सिचुएशंस के लिए. ऐसा मेरे ब्रदर को मैं बोलती हूँ तो वो बोलता है अच्छा फिर तो छोड़ के बैठ जाओ. तो बोलती हूँ नहीं, छोड़ के मत बैठ जाओ. आप अपने कर्म करो. आप यू डू योर ओन थिंग. डोंट डू इट इन अ वे कि आपको उसके रिजल्ट से क्या फर्क पड़ेगा, करेक्ट. वो मत सोचो. आप डू अपना योर काम एफर्ट्स, करो. आउटकम अपने आप आएंगे. Exactly. And the outcome will be the best outcome. I'm telling you. करेक्ट. God has been very kind to me. Like, I have been blessed with, as I started only, I have been blessed with very good people always. See, you are sitting in Mumbai. I'm sitting here. There was no connection. How come, you have been sent in my life and you have been there when I needed you the most? When both of us, but you being very strong during that time, I have not been that strong. So when I used to call you, you always used to pick up call and used to suggest me. So I wanted somebody like as a friend. I wanted, these are, these people are my family, but ek hota hai na ki friend, you have been that friend. And there is one more lady. When as I mentioned that I have started taking like spirituality as, so I have started, I have learned tarot also. So during that, on that tarot group, now I have found a friend. She have done my tarot reading in that group. She is also a student of that community only, and I am also a student. But she have done my tarot reading, and since then, we something changed. And it's been 2 years that we are. She is in Cambodia, and I am here in India. But we message. She check on me. I keep a check on her. That's how we are connected. I think that's more than enough. That somebody is there. जब आपको किसी को कुछ बोलना है ना, तो somebody is there कि आपको वो सुन रहा है. करेक्ट. तमन्ना, ये बीच बीच में जो हैंग हो रही है आपकी वीडियो, ये ऐसा तो नहीं कि वीडियो में हैंग आएगी? नहीं, ठीक दिस आएगी विल ना? कम नॉर्मली, डोंट वरी. हाँ, परफेक्ट. मुझे लगा यू हम इतना ब्रोक बोल दैट रहे हैं. एंटायर फ्लो. पता है मैं ऑलमोस्ट होने की हालत में थी. In fact, I was going to say, when you were saying that grief changes you so much, you relate to somebody जिससे आप जानते भी नहीं हो, because that person has gone through that same grief. And मतलब हमारा तो केस खैर अलग ही है, elder daughter, same, 3 siblings, बच्चों का भी similar state. When our mothers passed away, तो हमारा वो भी बच्चे भी like 4-5 months वाले age में थे. We connect on a different level, but in any case, I think grief is a very big connector. आप वो relate कर पाते हो कि अच्छा, this is what that person is going through. But finally, my last question: when you see people जो grieve कर रहा है, who has lost somebody, how do you hold that space for that person? और आप क्या कहना चाहोगे उसको, from your experience about grief? And what do you want to tell other people who have probably never experienced grief because they don't understand what we are going through? See, recently one of my friend, she lost her father, and I know what she was going through because I can feel what she was feeling. Losing a parent is I would not say losing a parent is a most difficult thing, because losing anybody, Is is difficult. a very difficult part. But losing a parent is something that, आपको कहीं ना कहीं दिल में ना, आपको वो चीज का डर हमेशा से रहता है. Correct. ठीक है, कि आपके पेरेंट्स दे आर गेटिंग ओल्ड, एंड देन यू आर नॉट विद देम. एंड डॉटर्स होती है ना, तो डॉटर्स का ये चीज आफ्टर शादी ही शुरू हो जाता है, दैट आई एम नॉट विद देम. What if something happens? What if they need us? And if a daughter is living in a different City. state or different place, तो वो और ज्यादा challenging हो जाता है. And this friend of mine, of course, she's living in a different state. So she got this news, and I had nothing to say, because I don't wanted to console her, or, I just hugged her.
and I just said ki, I am there for you whenever you wanted. And she left from this place to her place, and then when she came back, we never, because as you mentioned that everybody is not comfortable to talk about the Correct. grief. So Correct. as I mentioned that just इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको 1 महीना हुआ है कि 2 महीना हुआ है 3 महीना हुआ है कि अभी तो बहुत 4 टाइम हो साल गया। हुए। हाँ, 4 साल हो गए हैं। आप ग्रीफ आप लाइफ लॉन्ग करते हो, आप कैसे आप भूल जाओगे किसी को यार? आप कैसे भूल सकते हो? चाहे वो कोई भी हो आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट हो, आपका बच्चा हो, आपका डॉग ही हो। अब मेरे डॉग को गए हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, बट आई स्टिल मिस हिम, माई किड्स मिस हिम। तो मैं अपने बच्चों को ये नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं नहीं, या फिर मैं वो दूसरा डॉग ले आऊंगी तो हम उसको भूल जाएंगे। My first dog, she passed away when she was 14 years old. So as a dog, she have lived her good life. Then लाइफ। also, we still remember her. The other day we were telling her stories कि अपने बच्चों को कि हम उसको कैसे लेकर आए थे घर पे, and how old we were. So entire thing we had a, like, we told, three of us were like, I was sitting with my kids, my sibling, my brother sister was on a video call, and we had our own stories to tell. So आप नहीं भूल सकते हो किसी को भी नहीं भूल सकते हो जो भी आपकी लाइफ में था। तो मुझे लगता है आपको बस whoever is grieving as a person, take your time, ठीक है, there is no hurry। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कि 1 महीना 2 महीना या इतने साल उतने साल ही ग्रीव करना, नो, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट लूजिंग योर सेल्फ इन दैट ग्रीव। आप अपने आप को मत खो। आपकी आपको ग्रीव में जाते जाते, उस दुख में जाते जाते आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना आपका जो इंसान चला गया है उसको कोई बेनिफिट हो रहा है। they wanted you to be happy, like my mother always wanted me to happy, so I want to be happy for her and for my kids and for myself। अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो मेरी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने आपको मेंशन किया दैट व्हेन we lost her, I was in a very deep black hole, ठीक है, तो मेरी हेल्थ पे इफेक्ट हुआ। फ्रॉम 78 to 58 kgs, 20 kgs अगर किसी को लूज करना है तो कितना टाइम लग जाता है। आई लॉस्ट इट इन लाइक ऐसे। करेक्ट। कोई मुझसे पूछता है ना कि शिल्पा इतनी पतली कैसे हो गई, आई ऑलवेज टेल देम, तमन्ना, दैट भगवान ना करे कि जिस तरह से मैं पतली हुई हूँ उस तरह से वैसे कोई भी कोई पतला नहीं हो, होएगी। बिकॉज इट वॉज नॉट हेल्दी। तो वो चीज है कि आप when you're grieving, don't listen to anyone, grieve, but take care of yourself, take care of your loved ones who are watching you, who are still there for you। they are the important people who are there in your life। तो मुझे लगता है कि हाँ, ग्रीविंग इज बेसिकली ऑन टाइमली बेसिस कि जब होगा तो हो जाएगा वो एक प्रोसेस। जब जैसे मैंने अब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक आई एम ऑन एक्सेप्टेंस फेज और ग्रीफ। सो बट स्टिल कभी कभी फिर मैं डिनाइल में भी आ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, मुझे वो हिट नहीं करता। अभी भी मुझे कभी कभी जैसे एकदम माइंड में आता है कि नहीं अभी भी, तो फिर मुझे अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था। अगर मैं वहां पे होती भी तो भी मैं क्या कर लेती। तो मुझे लगता है उस टाइम पे ना, जैसे मुझे मेरी फैमिली ने हेल्प करा उस सिचुएशन से निकलने में, मेरी स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प करा, मेरे चैंटिंग जो मैं करती हूँ उसने हेल्प करा, मेडिटेशन, उन चीजों ने हेल्प करा। तो यू फाइंड योर वे कि आपको उस समय क्या चीज ऐसी है जो आपको सूद कर रही है, जो अच्छी लग रही है। इट कैन बी एनीथिंग। आई थिंक इट कैन बी एनीथिंग, लाइक you can go for therapy, you can join spiritual group, you can join grief group, anything, music, like dancing। I put on music when my kids at their school, I put on music and I dance। I just dance for myself, not for कि कोई मुझे देखेगा या क्या जज करेगा। वो बोलते हैं ना dance like no one is watching। वॉचिंग यू। Actually you should do that for yourself, because I love music, I love all this thing, so I do that। whatever you love ना, you should do that, because आपको कोई तब तक ग्रीफ से बाहर नहीं निकाल सकता। थेरेपी विल ऑल्सो नॉट हेल्प यू टिल द टाइम यू डोंट वांट टू कम आउट। करेक्ट। तो जब तक आप नहीं निकलना चाहते उस चीज से, निकलना चाहते एज एन नॉट फॉरगेटिंग योर पीपल, but that state of mind where you are blaming yourself, you're in depression, you are doing things which is not in your good favor,
तो वो चीज मुझे लगता है कि आपको बस हेल्प ले लेनी चाहिए। फाइंड योर पीपल जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, गो आउट, हैव कॉफी। मुझे याद है जब ये चीज होनी शुरू हुई थी एंड माय हस्बैंड वाज आल्सो लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी बिकॉज ऑफ वर्क। When my kids used to go to school, I used to go have coffee. I used to go, watch movies alone. And my friends used to think, "तू अकेले कैसे movie चली जाती है?" Because I was working on myself. Correct. मैं ऐसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी अपनी खुशी के लिए कि मैं दूसरे लोगों को बोलूं कि अच्छा मूवी चलना है तो आई विल वेट फॉर देयर यस नो Correct. I wanted to change my own life, not theirs. They are happy in their life. I wanted to change mine. I have worked on that. So I'm very proud of myself. I'm also proud of you. Thank you. I'm so happy and I'm so proud. Seriously, I'm so proud that the जिस स्टेट में मैं थी अब मैं उसमें नहीं हूँ. I don't have any grudges or regrets or bad vibes for anybody. I am just focusing on myself and my people. That's it. They are the only priority in my life, my kids and my own self. I'm proud of you. Thank you. Thank you so much, Shilpa, for doing my inaugural episode and Hey, I'm so happy. agreeing to talk, because I think ये जो चीज है ना, we talk amongst ourselves, you talk with your siblings, you talk with your group, but वो चीज आके ना स्क्रीन पे बोलना कि अच्छा this will be out for people to see, it's very difficult. It is very And difficult. Why? I'm telling you, because why people don't talk about it, because we feel that people are going to judge us. judge, exactly. So I'm telling I am out of that. That's that great. so I don't think, see people, वो बोलते हैं ना, वो एक कहावत है हिंदी में जो कि एक्चुअली में है कि चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोगों ने किसी के पैदा होने पे भी बोलना है, किसी की शादी पे भी बोलना है, किसी के डिवोर्स पे भी बोलना है, किसी की डेथ पे भी बोलना है, किसी के ग्रीफ पे भी बोलना है। उन चार लोगों ने बोलना ही है। तो उन चार लोगों को छोड़ो ना उन्हीं के हाल पे। I know. अपना काम करो भाई, अपनी लाइफ जियो। लेट दोस चार पीपल हैव देयर गॉसिप सेशन। I know. यू लिव योर लाइफ। उन चार लोगों के लिए भी कोई काम छोड़ दो ना, उन लोगों को भी लाइफ जीनी है। और हम जब तक उनको कुछ गॉसिप नहीं देंगे, उन चार लोगों की लाइफ में कुछ काम नहीं रहेगा ना। तो let True. them talk about it. I know. And I'm so proud of us that we recorded an entire episode without crying. Exactly. पता है मैं ये देखो मैं टिश्यू लेके बैठी थी। Yes, I'm so happy. Thank और you. मैंने सोचा था मैं रोऊंगी, बट पता नहीं, आई एम फीलिंग सो हैप्पी।